Welcome to the introduction of the chapter The Hack Driver, chapter number 8 by Sinclair Lewis. Before I go on to the introduction, let me tell you something about Sinclair Lewis, the writer of the chapter. Full name is Harry Sinclair Lewis. He was born on 7th February 1885 and died on 10th January 1951. He was an American writer and playwright, also a short story writer. He won the Nobel Prize in Literature in 1930 and also won the Pulitzer Prize for fiction. Now, coming on to this chapter. This chapter is one of the best one, which has just been written specially on wit and humor in some new types of character. And this is the specialty of Sinclair Lewis, for which he has won the Nobel Prize for Literature in 1930. This is a beautiful story of a newly passed out lawyer. It's a story of a young lawyer who had just been passed out from a law college, and he passed out his law graduation with honors, means with great subjects, you can say. And he just started working in a magnificent law firm as a junior assistant clerk. And his purpose was to serve summons to the cheap private detectives, just like cheap private detective. And he was not satisfied with his job because he was to serve the summons to all culprits who were being wanted by the court. So one day he got the assignment to go to the New Mullion City, where he was to serve the summon to one man called Oliver Lutkins. He was a hack driver, ghoda gadi ka driver. Despite of writing too much to him, he was not coming, and his presence was required in the court for finalization of one, of one court case. But he was not coming. So this writer or the narrator was being sent to New Mullion to serve the summon of the court to Oliver Lutkins. He goes there by train. And on the railway station, once he get down, he told to the hack driver, he hired one hack driver with his lorry or with his carriage and said to him that I want to go to Oliver Lutkins. Do you know him? Oh, he said, yes, I know him. He is the most famous or well-known character of this place. So he takes him to the different places. He takes him to the Fred shop, Gustav barber shop, then Gray's shop, then in the billiard court, then had the lunch with him at the Ward Hills, and after that when he takes to his mother's farmhouse. But he didn't find him anywhere, and he was so friendly with him that he charged even for his timings also. Lastly, he came by afternoon train to the city, and once he reached to the office, then office boss or his chief scolded him too much that you were not been able to serve the summon, and throughout the day you were there. Lastly, he was being sent back to the New Mullion with another person, and the moment they reached there, they found that on the railway station his other friend asked him that now we are reaching here, and this narrator said to the other friend that this is the man who helped me a lot. He is one of the nice men. And last time he took me all around the city, but we could not find Oliver Lutkins. Then his friend or the companion said to him that he is the only guy whose name is Oliver Lutkins. Lastly, they went to him, get the signature done. Then there was a request being made by Oliver Lutkins and by his mother that you please go to our neighbors. They want to have a coffee with you because you have visited all the places only to their house. Means you have not visited only one place during your last visit, that was their house. So they are very anxious about you. They want to have your appearance in their house for the coffee.
So this is the story all about. Now let me tell you the same version in Hindi also. द हैक ड्राइवर सिंक्लेयर लेविस का लिखा हुआ एक शॉर्ट स्टोरी टाइप है, काफ़ी ह्यूमरस है, ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन है, मजाक से भरा हुआ, और किस तरह से एक बुद्धि का प्रयोग करके एक घोड़ा गाड़ी का चालक किस तरह से एक वकील को मात देता है या वकील का बेवकूफ़ बनाता है, वो जो है इसमें दिखाया गया है। सिंक्लेयर लेविस, हैरी सिंक्लेयर लेविस इसका पूरा नाम है। 7 फरवरी 1885 को जन्म हुआ, 10 जनवरी 1951 को इसकी मृत्यु हुई। ये अमेरिकन राइटर है। इसको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में, और पुलित्जर प्राइज़ फिक्शन के लिए मिला। और ख़ास करके ये जो इसको प्राइज़ मिला, ये एक स्पेशल कैटेगरी थी जिसके लिए इसको मिला था, वो था बुद्धि का प्रयोग, और बुद्धि के साथ साथ मजाक का प्रयोग, और डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स में उसको डाल के दो चीज़ों को, बुद्धि का प्रयोग और मजाक का प्रयोग, ह्यूमर का, नए नए पात्रों में प्रयोग करने की अद्भुत क्षमता के लिए उसको 1930 के लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। आइए अब स्टोरी में आते हैं। वास्तव में ये स्टोरी एक नए नए बने वकील की है, जो कि अभी अभी जो है पास आउट होके वकील बना है, और उसने एक बहुत अच्छी लॉ की एक कंपनी के अंदर एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की नौकरी ज्वाइन की है। हालांकि उसको बनना तो था वकील, परंतु वो बन गया जो है एक असिस्टेंट क्लर्क वहाँ पे, और वो उसका काम था जगह जगह पर जाकर कोर्ट के समन, जो कोर्ट का नोटिस होता है, उन आदमियों को जाके देना होता था। और वो उसको भेजते भी वहाँ थे, या तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी होती थी, या वहाँ पे उसकी कभी कभी पिटाई भी हो जाती थी। वो इस धंधे से काफ़ी खुश नहीं था, वो वहाँ से भागना चाहता था, और वो सोचता था कि इससे तो अच्छा है कि मैं अपने ही गांव या शहर में जाके वहाँ पे डायरेक्ट जो है मैं एक यूँ कहिए कि सीधे तौर पे एक वकील का काम कर सकता हूँ इस काम को करने की बजाय। तो अब की वो शहर की ज़िंदगी से बोर हो चुका है। अब की बार उसको न्यू मुलियन करके एक शहर है, वहाँ भेजा जाता है ओलिवर लुटकिंस नाम के एक आदमी के लिए। उसको कोर्ट का नोटिस या समन लेके जाता है वो उसके लिए। तो ये बड़ी गंदी ही जगह है, और वहाँ पे मीन्स दुकानें भी इसी टाइप की हैं। और जब ये वहाँ पे जाता है तो जाते हुए इसको बड़ी खुशी होती है कि हाँ, मैं शहर से जो है कुछ दूर जाऊँगा, जो कि लगभग 40 किलोमीटर दूर था शहर से। और जैसे ये वहाँ पे ट्रेन से जाता है, रेलवे स्टेशन पे उतरता है, तो एक घोड़ा गाड़ी का चालक होता है, उससे ये पूछता है कि क्या आप ओलिवर लुटकिंस के नाम आदमी को जानते हो? बोला हाँ मैं जानता हूँ। तो बोला कि मैं उससे मिलना है। तो ये जब उसकी गाड़ी में बैठ लेता है, सौदा तय हो जाता है, और जो है कुछ इस तरह से होता है कि $2 1 घंटे के लेगा। इस तरह से इनके किराए की जो है ये तय हो जाती है, और ये लगभग 6 घंटे तक वहाँ पे रुका था। तो इस तरह से इसको गाड़ी में लेके वो घूमता रहता है। वो गाड़ी में इसको लेके फ्रिज की दुकान पे भी गया, गुस्ताफ के बार्बर जो था नाई की दुकान पे भी लेके गया, ग्रे की शॉप पे भी लेके गया, बिलियर्ड खेलने की जो जगह थी उधर भी लेके गया। फिर उन्होंने एक वैड हिल करके जो है लंच किया वहाँ पे, और फिर उसकी माँ, किसकी माँ, ओलिवर लुटकिंस की माँ के फार्म हाउस पर गया, वहाँ पर भी जो है वो नहीं मिला, और आखिरी में ये दोपहर की ट्रेन पकड़ के शहर वापस आ जाता है। अब जब ये गाड़ी में बैठा हुआ होता है तो इसको जो है बड़ी ही जो है याद आती है न्यू मिलियन की, और वो सोचता है कि ये बड़ी अच्छी जगह है, मैं यहीं पर रहूँगा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं। और ख़ास करके ओलिवर लुटकिंस टाइप के कैरेक्टर को ये मन ही मन में जो है बड़ा खुश होता है कि कितना अच्छा आदमी है, उसने मेरे लिए कितना किया है, मेरे को लेके घूमता रहा। हालांकि उसने पैसे ज़रूर चार्ज किए, परंतु इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। किस तरह से उसने ढूंढा उसको, ओलिवर लुटकिंस को, और ये सोचता है कि मैं काश यहीं पे बस जाऊं और यहीं के ऊपर अपनी वकालत शुरू कर दूं। परंतु ये जैसे ही ऑफिस में पहुंचा शाम को, इसके बॉस ने इसको खूब डांट पिलाई और बोला कि तुम जो है किसी काम के नहीं हो, तुम तो नालियां वगैरह खोदने का काम शुरू कर दो, इस वकालत वगैरह का धंधा तुम्हारे बस का नहीं है। फिर उसके साथ एक और आदमी भेजा जाता है, क्योंकि अगले दिन जो है कोर्ट में सुबह सुबह ओलिवर लुटकिंस की पेशी होती है, और उस केस को फाइनलाइज करने में, केस को सुलझाने में उसकी महत्वपूर्ण एक यूँ कहिए अपीयरेंस होनी ज़रूरी है।
एक आदमी और भेजा जाता है उसके साथ, और वो जो है फिर ट्रेन पकड़ करके फिर वापस न्यू मुलियन के लिए चले जाते हैं। जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं तो वहाँ पर सामने वही घोड़ा गाड़ी का चालक जो है वहाँ होता है, और एक औरत उसके साथ बात कर रही होती है, वो उसकी माँ है। तो ये दोनों जो वकील और इसका दोस्त आपस में बात करते हैं, तब वकील ये कहता है कि जो है ये वो आदमी है जिसने मुझे ओलिवर लुटकिन को ढूंढने में बहुत ज़्यादा सहायता की, और हाँ, इसने बहुत ज़्यादा सहायता की। तो दूसरा आदमी जो उसका साथी था बोलता, हाँ इसने क्यों की होगी, क्योंकि ये खुद जो है ओलिवर लुटकिंस ही है। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। फिर वो आपस में जो है खूब हंसी मजाक करते हैं, और फिर लुटकिंस और उसकी माँ उसको बोलते हैं कि सुनिए, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ हर एक आदमी से मिल लिए। उस दिन पूरे शहर के आदमी आपको जानने लग गए, हर एक कैरेक्टर्स से आप वाकिफ़ हो गए, सिर्फ हमारे पड़ोसी आपसे नहीं मिले। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पड़ोसियों के घर चले जाएं, और एक बार वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके घर पे कॉफ़ी ज़रूर आप पी के जाना। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आदमी की पढ़ाई लिखाई एक अलग चीज़ होती है, और एक खाली शैतान जिसका दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा आगे की सोचता है। तो ओलिवर लुटकिंस एक कढ़ा हुआ इंसान होता है, मीन्स उसको वो पढ़ाई वालों को पागल बनाता है, और वो किसी के पैसे ले लेता है तो देता नहीं है, उसका यही काम धंधा है। और सारे के सारे कैरेक्टर्स उसने वहाँ पे सेट कर रखे होते हैं न्यू मुलियन के अंदर। इसका मतलब जो है उसको बहुत सारे आदमी ढूंढते रहते हैं, और वो किसी का पैसा वापस नहीं करता। वो एक तरह का जो है घुमक्कड़ टाइप का, एक फालतू टाइप का इंसान है। और वो जो है इस नए वकील का खूब जो है पागल बनाता है, और उसके पैसे भी ऐंठता है। यहाँ तक कि घर पे उसको जब खाने के लिए अपने घर पे लेके जाता है तो वहाँ से भी वो पैक करवा लेता है, और उसके आधा डॉलर या जो भी होता है वो करके उसको वहाँ से ले चलता है, और जितने घंटे वो वहाँ पे रहता है उस घंटे के भी पूरे चार्ज करता है। तो ओलिवर लुटकिंस एक तरह से यूँ कहिए कि बहुत ही शातिर दिमाग का इंसान है, जो वकील को घुमा के रख देता है, और वकील के समझ में भी नहीं आता है। आखिरी में जो है जब वो अपने साथी के साथ जाता है तभी जाके जो है वो उस आदमी से मिल पाता है। सो हैक ड्राइवर इज़ ओलिवर लुटकिंस। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई कम विद द इंटरप्रिटेशन विल बी बिट फास्ट because of supplementary chapter.